A very warm welcome, my dear students. Welcome to another exciting lecture of law with me, CA Preeti Agarwal. काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले सेशन में कवर किए थे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। ओके, चलो। What are the essential elements of a valid contract? अब तक हमने क्या पढ़ा है? The first essential element is minimum two parties. So we need minimum two parties and they must be competent to contract. ये हमारे notes हैं. So we need minimum two distinct मतलब different parties to enter into a valid contract. Different होने चाहिए because I cannot enter into contract with myself. I cannot give an offer to myself. कोई भी natural, artificial person can enter into contract. There must be proper offer and acceptance. That is the next element. क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए एक ऑफर एंड दैट ऑफर मस्ट बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड. एक बार आपको ऑफर के बारे में पता चल गया, फिर आप एक्सेप्ट करोगे, एग्रीमेंट बन जाएगा. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आई ऑल्सो नीड enforceability. Enforceability means there must be intention to create legal relation. Enforceability का क्या मीनिंग बताया था मैंने आपको, याद करके बताओ. Enforceability means, बोलो जोर से बोलो. Enforceability means intention to sue, intention to file a case. If one party defaults, other party can take action. जितने भी बिजनेस या कमर्शियल एग्रीमेंट्स हैं वहां पर हम अज्यूम करते हैं दैट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन. वहां पर तो अजम्पशन है. लेकिन जितने भी सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं वहां पर ऐसा कोई अजम्पशन नहीं है. हम बोलते भाई पार्टीज तुम आपस में ही सुलझा लो. We assume that parties do not intend to create legal relation. ठीक है. बैल्फर वर्सेस बैल्फर हमने यहां पर पढ़ा था. We had also discussed the case और हमने लास्ट लेक्चर में इसको रिवाइज भी किया था. फिर फ्री कंसेंट होना चाहिए. हाँ, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट टाइम पढ़ा था. फ्री कंसेंट होना चाहिए. कंसेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 13 and free consent is defined under section 14. Consent means that parties must agree upon the same thing in the same sense. Consensus at idem होना चाहिए. अगर मैं आपको पूछती हूँ, डू यू वांट टू बाय दिस पेन, आपने देखा, आपको पसंद आया, आपने बोला हाँ मैम मुझे खरीदना है. We both are agreeing upon the same thing in the same sense. We have consented. और ये कंसेंट ना फ्री होना चाहिए. कोई जोर जबरदस्ती नहीं है. मैंने अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट किया है. कंसेंट फ्री होना चाहिए. सेक्शन 14. Consent is not free when it is caused by coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, section 17, misrepresentation, 18, and mistake, section 20. coercion में keywords क्या थे? coercion मतलब there is some kind of threat or physical force to cause the other person to enter into a contract. So coercion means there is some kind of threat or physical force. It is used to cause the other person to enter into contract. फिर हमने पढ़ा था undue influence, section 16. undue influence की definition क्या है? It means there is some kind of moral or mental pressure between persons whose relations are such that one person is in the position to dominate the will of the other person.
ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था, ये आगे जाके आएगा. एंड ही यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन अनफेयर एडवांटेज. सेक्शन 17 फ्रॉड को डिफाइन करता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रॉड? फ्रॉड मीन्स there is some false representation of fact made willfully, intentionally, with the intention to cheat or to deceive the other party. Fraud means there is false representation of facts. हम झूठ बोल रहे हैं with the intention, हम जानबूझ के बोल रहे हैं to cheat, to deceive the other party. Misrepresentation में भी there is false representation of facts, but it is made innocently without any intention to cheat or to deceive the other party. मेरा यहाँ पर चीटिंग का कोई इंटेंशन नहीं है. हाँ, मैं मानती हूँ मैंने कुछ गलत बोला है, झूठ बोला है, बट मुझे लगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है. मैंने कोई इंटेंशन से झूठ नहीं बोला है. मैंने गलत बात बोली है, मैं मानती हूँ, बट मेरा आपको चीट करने का कोई इंटेंशन नहीं था. मुझे लगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो सच है. आई बिलीव्ड इट टू बी ट्रू. मिस्टेक. सेक्शन 20 बायलैटरल मिस्टेक की बात करता है. मिस्टेक मीन्स एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग. भाई कुछ समझने में गलती हो गई, खुद ही समझने में गलती हो गई. मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक में क्या फर्क है? मिसरिप्रेजेंटेशन में द पार्टी इज सेइंग, दे आर रिप्रेजेंटिंग सर्टेन फैक्ट्स विच आर फॉल्स. मतलब कुछ बोल रहे हैं, कुछ बता रहे हैं. मिस्टेक में पार्टी खुद ही कुछ गलत गलत समझ रही है, किसी ने कुछ बोला नहीं है, हम ऐसे ही अपने आप समझ लेते हैं. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज हु आर capable of entering into a valid contract. ये सबसे पहले सेक्शन 11 में लिखा है, ये हमें पता होना चाहिए. सेक्शन 11. सेक्शन 11 क्या बोलता है? ओनली अ मेजर पर्सन, पर्सन ऑफ साउंड माइंड एंड पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. ओनली अ मेजर पर्सन दैट इज अबाउ 18. पर्सन साउंड माइंड का होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, सेन होना चाहिए. ही मस्ट बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर्मिंग रैशनल जजमेंट्स. पर्सन शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड. तो सवाल उठता है कौन डिस्क्वालिफाइड है? एलियन एनिमी. एलियन मतलब फॉरेनर, एनिमी मतलब सिटीजन ऑफ अ कंट्री विद हुम वी आर एट वॉर. फिर हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमारी एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. Foreign sovereigns, ambassadors, king, queen, monarch, rulers, diplomats, representative of foreign states, इनके पास इम्यूनिटी है, हम इन पे केस नहीं कर सकते. इनकी इनकी पोजीशन ही वैसी है. आगे और डिटेल में पढ़ेंगे. इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट पर्सन. इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके क्या फायदा? बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा. लाइबिलिटीज आर मोर देन एसेट्स. अरे इसको खुद ही अपने लाइबिलिटीज पे करने के लिए पैसे नहीं है, ये हमारे लिए क्या खर्चा करेगा, हमको क्या पैसे देगा, ये इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके क्या फायदा? ये लिखा है सेक्शन 11 में. कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 11. सेक्शन 11 कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी ऑफ पार्टी. सेक्शन 11 कॉम्पिटेंसी कैपेसिटी ऑफ पार्टीज. लॉफुल कंसिडरेशन. Consideration means something in return. Quid pro quo. Both parties must get something in return. Both the parties must receive something in return. हमने यहाँ पर देखा था कि X sells a table to Y. तो अगर वो टेबल दे रहा है, what is he getting in return?
5,000. So for him, consideration is 5,000. अगर Y टेबल दे रहा है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? सॉरी, अगर वो 5,000 दे रहा है तो उसको रिटर्न में क्या मिलता है? टेबल. तो उसके लिए कंसिडरेशन है टेबल. ये कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए. लॉफुल मींस एक्सेप्टेड बाय लॉ, लीगल होना चाहिए. ये केस में तो इलीगल है. ये केस में तो लीगल है ही नहीं. गवर्नमेंट जॉब के लिए आप पैसे दे रहे हो, ब्राइब दे रहे हो. लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए. ऑब्जेक्ट मींस द पर्पस फॉर विच द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड. दैट पर्पस मस्ट बी लॉफुल. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट मींस द पर्पस फॉर विच वी आर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. दैट पर्पस मस्ट बी लॉफुल. सेक्शन 23 इनकी बारे में बात करता है, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, अभी नहीं. ठीक है. तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था. चलो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. लेट अस नाउ discuss the next essential element of a valid contract. लॉ बोलता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए which is not, हाईलाइट करो not, which is not expressly declared void. ठीक है. It is not expressly declared void. ये क्या होता है? void क्या होता है? Now ये प्रोविजन तो बाद में पढ़ेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म void. void का मीनिंग है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. इट इज द ऑपोजिट ऑफ वैलिड. वैलिड क्या होता है? वैलिड मीन्स इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ. यस और नो? वैलिड का मतलब होता है एनफोर्सिएबल बाय लॉ, लेकिन void का मतलब होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. ये अपने टेक्स्ट बुक में लिखो. वैलिड मतलब एनफोर्सिएबल बाय लॉ. void का मतलब होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. लिखो, टेक्स्ट बुक में लिखो, मार्जिन है ना ऊपर. ओके. चलो अब पहले मुझे लिखने दो, फिर मैं आपको नोटबुक में एक चार्ट लिखवाऊंगी फॉर void. ओके. पहले मुझे लिखने दो, आप समझ लो, फिर समझ के लिखना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ void? ठीक है. आप अभी ये आपने टेक्स्ट बुक में लिख लिया, ये ऊपर वाला. अब मैं ये डिलीट कर रही हूं. ठीक है. अब हम नोटबुक में लिखेंगे, लेकिन उसके पहले लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू. आप समझ के लिखना. नाउ व्हाट इज void? void का सिंपल मीनिंग होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. तो वैलिड इज एनफोर्सिएबल, void उसका ऑपोजिट है, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. मतलब आप इनके लिए केस नहीं कर सकते. अगर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है तो केस होगा. उसका ऑपोजिट नॉट वैलिड मतलब केस नहीं होता है. ये सब कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं. नाउ void में बी ओके, void में बी void ab initio. इसका मतलब होता है void from the beginning. और दूसरा होता है just void. ठीक है. तो void दो तरीके के हैं. एक है void ab initio. void ab initio का मतलब होता है void from the
बिगिनिंग, और दूसरा होता है जस्ट वॉइड। आई विल एक्सप्लेन बोथ। अब वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब ये तो कोई ऐसा एग्रीमेंट है जो शुरू से ही वॉइड है। लाइक से फॉर एग्जाम्पल, entering into contract with minor is void ab initio, क्योंकि माइनर तो केपेबल है ही नहीं ना ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो माइनर के साथ की गई एग्रीमेंट इज वॉइड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैम ये लैटिन फ्रेज है ना, तो क्या ये हमको लिस्ट में लिखना चाहिए? वी आर प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ लैटिन फ्रेजेस। यस, आपके नोटबुक के लास्ट पेज पे जो आप लिस्ट ऑफ लैटिन फ्रेजेस प्रिपेयर कर रहे हो उसमें ये ऐड करो, void ab initio, और उसका मीनिंग भी लिखो, void from the beginning। void right from the beginning लिखोगे तो भी चलेगा, void from the beginning। लिखो void right from the beginning। आई होप आपने ये ऐड कर लिया है आपके लिस्ट में। यस, तो void का दो टाइप्स होते हैं, एक है void ab initio और दूसरा है just void। void ab initio means it is void right from the beginning, जैसे माइनर के साथ एग्रीमेंट। एक और एग्जाम्पल, एग्रीमेंट फॉर किलिंग, स्मगलिंग, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है, माइनर, किलिंग, स्मगलिंग, ये शुरू से ही वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो। तो मैम क्या हम बोल सकते हैं कि जो भी ये इलीगल एक्टिविटीज है वो वॉइड एब इनिशियो हैं? सही बोले, ठीक है, इलीगल जो है दे आर ऑल वॉइड एब इनिशियो। तो हमने क्या पढ़ा? वॉइड दो तरीके का होता है। सबसे पहले वॉइड एब इनिशियो मतलब वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना, किलिंग या स्मगलिंग का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई भी इलीगल होगा ना, वो वॉइड है, वॉइड एब इनिशियो है। अच्छा, फिर ये जस्ट वॉइड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जस्ट वॉइड? जस्ट वॉइड का मतलब होता है द कॉन्ट्रैक्ट वॉज वैलिड व्हेन एंटर्ड, जब एंटर किया था तब तो वैलिड था, लेकिन कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया दैट द कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन बिकेम वॉइड। एग्जाम्पल से आपको ये समझ में आ जाएगा। ए promised टू मैरी बी, मैरिज का प्रॉमिस करना, एंगेजमेंट भी हो गई, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। मैम लेकिन एक बॉयफ्रेंड अगर एक गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस करता है आई विल मैरी यू, वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले प्रॉमिसेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं। हाँ, लेकिन ए ने बी को प्रॉमिस किया, इन दोनों की शादी होने वाली थी, एंगेजमेंट हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, तो ये प्रॉमिस टू मैरी इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, सो इट इज वैलिड व्हेन एंटर्ड। लेकिन लेटर ऑन ए डाइड, जैसे ही ए डाइड, ये सर्कमस्टांस की वजह से अब तो मैरिज नहीं हो सकती ना, ए हैज डाइड, इस सर्कमस्टांस की वजह से अब मैरिज नहीं हो सकती, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो जब एंटर किया था तब तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में जाकर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता ना, वो तो ए डाइड, कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड बाद में जाके। ओके, एक डाउट आया है कि मिस्टेक वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हॉर्स वाला एग्जाम्पल स्टूडेंट ने रेफर किया है कि एक्स एग्रीज टू सेल अ हॉर्स टू वाई
बट अननोन टू बोथ द पार्टीज द हॉर्स हैड ऑलरेडी डाइड इन द स्टेबल। ये मिस्टेक वाला जो एग्जाम्पल है, मिस्टेक वाला जो एग्जाम्पल है, यस दैट इज वॉइड एब इनिशियो। जितने भी बायलैटरल मिस्टेक्स हैं वो सारे वॉइड एब इनिशियो हैं। तो ये वाला आपने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया कि ये वाला जो एग्जाम्पल है जहां पर उनको पता ही नहीं है दैट द हॉर्स इज डेड और ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या ये वॉइड एब इनिशियो होगा? यस। जितने भी बायलैटरल मिस्टेक्स है ना, वेरी गुड, जितने भी बायलैटरल मिस्टेक्स हैं ये हैं वॉइड एब इनिशियो। ये वाला भी वॉइड एब इनिशियो ही होगा। ओके, क्योंकि इसको लगता है कि वो 3 हॉर्सेस ओन करता है और इसको लगता है 2, तो ये भी मिस्टेक है, दिस इज वॉइड। लेकिन ना एक्ट में उनको वॉइड एब इनिशियो करके ऐसा नहीं लिखा है, एक्ट में उनको सिर्फ वॉइड ही लिखा है फॉर कन्वीनियंस सेक। ठीक है, कन्वीनियंस के लिए उसको वॉइड ही लिखा है। अच्छा, ये समझ में आया कि जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया था, देखो मैं कैसे लिख रही हूँ, जब प्रॉमिस किया था आपको भी ऐसे ही लिखना है, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है, सिर्फ ए और बी लिखना है उनके जगह पे। ए प्रॉमिस टू मैरी बी, तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, देखो मैंने सेम लाइन में लिखा है उसको। फिर ए डाइड, सर्कमस्टांस ऐसा हो गया दैट लेटर ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बिकेम वॉइड, क्योंकि मैरिज तो पॉसिबल ही नहीं है अभी। एक और एग्जांपल करते, देन आई विल गिव यू टाइम टू कॉपी। एक्स प्रॉमिस टू एक्सपोर्ट अनियंस टू वाई। ओके, एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे अनियंस एक्सपोर्ट करूंगा। लेट्स से कि एक्स इंडिया में है और वाई बांग्लादेश में है। ठीक है, तो एक्स ने वाई को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे अनियंस एक्सपोर्ट करूंगा। जब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया तब तो सब कुछ ठीक था, ये सब वैलिड है, इट्स वैलिड। लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले ही द गवर्नमेंट imposed अ बैन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस। अब से अनियंस एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। इस सर्कमस्टांस की वजह से क्या अब हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते मैम, कॉन्ट्रैक्ट बाद में जाकर वॉइड हो जाएगा। तो जस्ट वॉइड का मीनिंग क्या होता है? जस्ट वॉइड दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड व्हेन एंटर्ड बट लेटर ऑन due to certain circumstances it cannot be enforced, it becomes void। अच्छा, यहां पर ना अब एक वेरिएशन करते हैं, ठीक है। मान लो कि y ने x को कुछ एडवांस दिया था, भाई तू अनियन वगैरह एक्सपोर्ट कर रहा है, ये ले, मैं तेरे को 10,000 रुपीज का एडवांस देता हूं। अब बैन लगने से कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया, तो क्या ये 10,000 रुपीज हम रिकवर कर सकते हैं? क्या वाई वो 10,000 रिकवर कर सकते हैं? क्या वो ये बोल सकते हैं भाई तो अनियंस तो नहीं दे रहा है, अभी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया, मेरे 10,000 तो वापस कर दे ना। लॉ बोलता है मिलेगा। वाई तू चिंता मत कर, तूने एडवांस दिया है ना, मिलेगा तुझे। देयर इज रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट। ठीक है, डोंट वरी, अगर आपने एडवांस दिया है वो आपको मिल जाएगा। रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कवर्ड है सेक्शन 65 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। रिस्टोरेशन, रेस्टिट्यूशन भी बोलते हैं उसको, रिस्टोरेशन या फिर लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो।
लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन, तो उसमें ये जो 10,000 है ना एडवांस, वो वापस मिल जाएगा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में रीस्टोरेशन इज कवर्ड अंडर सेक्शन 65। कौन सा सेक्शन है? 65। चलो इसको लर्न करते हैं। रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट सेक्शन 65, 5 बार बोलेंगे। रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट सेक्शन 65, restoration of benefit under a void contract section 65, restoration of benefit under void contract section 65। अब 2 बार आप खुद बोलो। फिर मेरे साथ बोलो। restoration of benefit under void contract section 65, restoration of benefit under void contract section 65। 2 बार लास्ट बार। हाँ, restoration of benefit under void contract section 65, restoration of benefit under void contract section 65। अच्छा, अब एक डाउट आया है। Can it be said that if the essential elements of a valid contract are not observed, then the contract is void? Absolutely right. एक भी essential element अगर missing होगा ना, तो वो valid contract नहीं बनेगा। अगर valid नहीं है, तो वो void है। तो वो void है। ठीक है? ओके। अब आप एक काम करो, आपके नोटबुक में टाइटल दो void, void करके लिखो। ठीक है? void जैसे मैंने लिखा है ना, ऐसे ही लिखो void। फिर 2 ऐसे लाइन बनाओ, जैसे यहां पर मैंने बनाए हैं। सेंटर ऑफ द पेज में void लिखो, सेंटर में void लिखो, फिर ऐसे बनाओ। ठीक है? जैसे मैंने किया ना, ये ऐसे। void का मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है? void को अगर आपको लिखना है तो आप लिखोगे नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। फिर एक साइड में लिखोगे void ab initio, उसका मीनिंग लिखोगे void फ्रॉम द बिगिनिंग। दूसरे साइड में आप लिखोगे जस्ट void, जस्ट को ब्रैकेट में लिखो, क्योंकि लॉ ये नहीं बोलता है। ये तो क्योंकि हम बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ रहे हैं, इसीलिए मैंने आपको लिखवाया है। आगे जाके आपको ये जस्ट void वगैरह बोलने की जरूरत नहीं होगी, फिर आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। void का मतलब क्या होता है? जब एंटर किया था तब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हो गया कि अब वो void हो गया। तो ये लिखो पहले, और फिर इसके नीचे एग्जाम्पल्स लिखेंगे। ये लिखो चलो। अब इसके नीचे एग्जाम्पल्स लिखो। क्या लिखेंगे? एन एग्रीमेंट विद माइनर इज void ab initio, ये लिखो। एग्जाम्पल लिखो, इसके ही नीचे लिखना। ठीक है? ये लिखो। हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि void ab initio में आपको कभी रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ जस्ट void में मिलेगा। बिकॉज लॉ में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। void ab initio हर बार इलीगल हो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। अब अगर हम वो हॉर्स वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, हॉर्स वाला एग्जाम्पल, तो हॉर्स वाले एग्जाम्पल में कुछ इलीगल तो था नहीं, बस मुझे पता ही नहीं था कि द हॉर्स हैज डाइड। तो अगर हम एडवांस दे रहे हैं और बाद में स्टेबल में गए और पता लगा कि अरे हॉर्स तो मर चुका है, तो आपको आपका एडवांस वापस मिल जाएगा।
तो रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट सिर्फ उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में होगा जहां पर जो ऑब्जेक्ट है ना वो लीगल है। तो हम उसको जनरलाइज नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स पे देखेंगे कि रिस्टोरेशन हो पाएगा या नहीं। हाँ, ये केसेस में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते मैंने इसको किलिंग के लिए 5 लाख दिए थे, अब इस ये तो मार के आया ही नहीं, ये तो वॉइड एब इनिशियो है, अब मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो वो रिस्टोरेशन नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट इल्लीगल है ना। आई होप आपका डाउट क्लियर हुआ। ठीक है, ये लिखा एग्जाम्पल। अब दूसरे साइड में जस्ट वॉइड में आ जाओ। ये ऐसे लिखो यहाँ पर। पहले तो इसका मीनिंग लिखो। ओके, ये लिखने के बाद आप लिखोगे ए promised to marry B। ठीक है, ए promised to marry B, later A died। फिर जो वैलिड है ये वाली ही लाइन में आप वैलिड व्हेन एंटर्ड लिखोगे, ये वाली ही लाइन में आप सर्कमस्टांस लिखोगे, उसके नीचे void लिखोगे। ये लिखने के बाद आप लिखोगे x, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं x promised to export onions to Y, but the government imposed a ban on the export of onions। तो कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड था व्हेन एंटर्ड, बाद में बैन लग गया तो सर्कमस्टांस ऐसा हो गया कि अब तो अनियंस एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, इसीलिए वो वॉइड हो गया। और फिर अगर कोई बेनिफिट दिया हुआ है तो वो रिस्टोर हो जाएगा, सेक्शन 65। ये है कवर्ड अंडर द लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन। लिखो। चलो आगे बढ़े। ये हमने पढ़ लिया है, ये एक और एग्जाम्पल है सेक्शन 65 का। एज पर सेक्शन 65, ये इंपॉर्टेंट है, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर void contract। As per section 65, when a contract becomes void मतलब पहले कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब वैलिड था ना। As per section 65, when a contract becomes void मतलब पहले वैलिड था ना। The party who received the benefit shall restore the benefit to the party from whom he received it।
मैम कंफ्यूज हो रहा है। एग्जाम्पल कर ले, फिर ए और बी से रिलेट करेंगे। ए ने प्रॉमिस किया दैट ही विल सिंग एट अ कॉन्सर्ट फॉर बी। बी ने उसको 5,000 का एडवांस भी दे दिया। अब कुछ रीजंस की वजह से कॉन्सर्ट नहीं हो पाया, ये बीमार पड़ गया, या फिर कॉन्सर्ट जहां पर होने वाला था वो हॉल जल गया, या गवर्नमेंट ने कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, कुछ रीजन से ये कॉन्सर्ट नहीं हो पाया। तो क्या ए को वो एडवांस रिस्टोर करना पड़ेगा, बेनिफिट रिस्टोर करना पड़ेगा? यस, रिस्टोर करना पड़ेगा। सेक्शन 65। देखो कॉन्ट्रैक्ट तो परफॉर्म नहीं हुआ, जब हमने प्रोमिसेस किए थे तब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था ना, लेकिन कुछ रीजन से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पा रहा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, ठीक है, लेकिन ये जो बेनिफिट मिला था तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा ना। बेनिफिट शैल बी रिस्टोर्ड। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स void, मतलब एंटर किया था तब वैलिड था, then later on it becomes void due to certain circumstances, the party who received any benefit, मेरे एग्जाम्पल में A, shall restore the benefit to the party, मेरे एग्जाम्पल में B, from whom he received it, मतलब A को B से जो एडवांस मिला था वो वापस कर देगा। ही मतलब A। ठीक है, ये सेंटेंस आई थिंक आपके टेक्स्ट बुक में आगे जाके मैंने प्रिंट करवाया है। ठीक है, ये लिख लो, आप ये लिख लो, सेक्शन 65 ये लिख लो। आगे है आपके बुक में, जब वॉइड डिस्कस किया जाएगा ना, तो आपको अगर नहीं लिखना है तो भी चलेगा, मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पर, वो ऑलरेडी प्रिंटेड है। ये देखो, ये मैंने प्रिंट करवाया है, ये देखो। तो अगर आपको अभी नहीं लिखना है इट्स ओके, इधर लिखा हुआ है, ये सेम एग्जाम्पल्स लिखे हुए, सिंगिंग वाला, एक्सपोर्ट ऑफ अनियंस वाला। ठीक है, आप चाहे तो ये आगे जाके देखो, वॉइड है, वॉइड क्लासिफिकेशन में ना वॉइड है, वहां पे लिख दो ना, द पार्टी हु रिसीव्ड एनी बेनिफिट, मेरे एग्जाम्पल में बी, सॉरी ए रिसीव्ड ना, shall restore the benefit to the party, example B, from whom he received it, he मतलब A received it। ठीक है, तो ये ऑलरेडी प्रिंटेड है। अब वॉइड का मीनिंग हमको समझ में आ गया। लॉ बोलता है आपकी जो एग्रीमेंट है ना, वो एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होनी चाहिए। मैम एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड क्या होता है? लॉ में एक छोटी सी लिस्ट है कि देखो ये सारे वॉइड है, ये मत करना, ये सारे वॉइड है, इनको एंटर मत करना, ऐसी कौन सी लिस्ट है? ये मैंने उनके 3 एग्जांपल्स लिए हैं। एग्रीमेंट इन रीस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। देखो इंडिया ना फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप किसी को भी किसी से शादी करने से रोक नहीं सकते अगर वो मैरिजेबल एज में है। फॉर गर्ल्स इट इज 18, फॉर बॉयज इट इज 21। अगर आप मैरिजेबल एज में हो तो फिर आपको मैरिज अपने पसंद के पर्सन से मैरिज करने से कोई रोक ही नहीं सकता। लेकिन अगर एक्स ने वाई से कहा मैं तेरे को 50 लाख रुपए देता हूं, तू मुझे प्रॉमिस कर यू विल नॉट मैरी एवर। अब आप किसी को पैसे के लालच से शादी करने से रोक नहीं सकते। सच रिस्ट्रिक्शंस आर वॉइड। रिस्ट्रेंट का मतलब होता है टू स्टॉप, रिस्ट्रेंट का मतलब होता है टू स्टॉप। आप किसी को अपने मनपसंद पर्सन से शादी करने से रोक नहीं सकते। इंडिया में कंप्लीट हो या पार्शियल हो, हर तरीके का रिस्ट्रेंट वॉइड है। कैसे? एक्स ने वाई से कहा ये ले 50 लाख रुपए, डोंट मैरी एवर, डोंट मैरी एवर।
दिस इज कंप्लीट रिस्ट्रेंट। हम कभी भी शादी नहीं करेंगे, दे दो 50 लाख। ए ने बी को 5 लाख रुपीस दिए, किसी से भी शादी कर ले, सी से मत करना, किसी से भी कर ले, सी से मत कर। पार्शियल रिस्ट्रेंट। इंडिया में कंप्लीट हो या पार्शियल हो, हर तरीके का रिस्ट्रेंट वॉइड है। एवरी रिस्ट्रेंट इज वॉइड। आप किसी को भी ऐसे रोक नहीं सकते, पैसे का लालच देके रोक नहीं सकते। ऐसी एग्रीमेंट्स करना ही वॉइड है। एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगेन, इंडिया फ्री डेमोक्रेटिक कंट्री है। आप किसी को भी पैसे देकर लॉफुल बिजनेस, ट्रेड, प्रोफेशन करने से रोक नहीं सकते। एवरी रिस्ट्रेंट इज वॉइड। देखो, एक्स ने वाई को 10 लाख रुपए दिए और बोला ये मेरा एरिया, यहां मैं ही बिजनेस करूंगा, तू तेरा बिजनेस बंद कर और जा इधर से। कंप्लीट रिस्ट्रेंट। सच एग्रीमेंट्स आर वॉइड। मैम, इसके 2 शॉप्स थे, एक हमने बंद करवा दिया, दूसरा वो कर सकता है। पार्शियल रिस्ट्रेंट वो भी वॉइड है। कंप्लीट हो या पार्शियल हो, हर तरीके का रिस्ट्रेंट वॉइड है। वेजरिंग एग्रीमेंट, वेगर नहीं बोलते इसको, वेजर बोलते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग उसे वेगर प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज रॉन्ग, इट इज वेजर। वेजर मतलब बेट। देखो, इंडिया में ना बेटिंग वॉइड है, कहीं कहीं पे तो इलीगल भी है। इट डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑल्सो। बेटिंग के लॉज काफी स्टेट पे भी डिपेंड करते हैं। इस पे तो और बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 3 में। अब तो सिर्फ वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, वेजर। इंडिया में बेटिंग वॉइड है। एक्स एंड वाई, इनके बीच में शर्त लगी आज बारिश होगी कि नहीं। एक्स बोलता है अगर बारिश होगी तो मैं दूंगा, वाई बोलते हैं नहीं होगी तो मैं दूंगा, दोनों में शर्त लगी हुई है। एग्रीमेंट इज वॉइड, एक्सप्रेसली वॉइड है, मतलब लॉ बोलता है भाई कुछ भी कर लो, ये तो वैलिड रखेंगे ही नहीं हम, केस करने तुम आ नहीं सकते कोर्ट में। सच वेजरिंग एग्रीमेंट्स आर वॉइड। तो भाई आपकी एग्रीमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए, एक्सप्रेसली वॉइड नहीं होनी चाहिए, तब जाके वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्मॉल क्वेश्चन, मतलब 2 मार्क का क्वेश्चन। तो यहां पर लिखो मेरे साथ, केस बेस्ड क्वेश्चन। मैंने बताया था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टाइप का क्वेश्चन आएगा इस पे। तो केस बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क्स। सेक्शन 29 इंपॉर्टेंट, लिखो लर्न। यस, बोलने को तो हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, बट वी मीन एग्रीमेंट। कभी कभार हम एग्रीमेंट बोलते हैं, बोलना हम कॉन्ट्रैक्ट चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना वी यूज इट इंटरचेंजेबली, एग्रीमेंट बोल देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, वी मीन द सेम। हाँ, कुछ कुछ केसेस में इसे एग्रीमेंट ही बोलना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर, अब डाउट क्या है कि वॉइड बोल रहे हो ना मैम, आप वॉइड बोल रहे हो ना, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड होना चाहिए, इधर एग्रीमेंट क्यों लिखा है? क्योंकि ये एनफोर्सिएबल है ही नहीं ना इन द कोर्ट, इसीलिए उसको एग्रीमेंट लिखा है। फिर मैम यहाँ पर तो वॉइड एब इनिशियो होना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना पहले कि लॉ हर बार वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो ऐसे नहीं बोलता, वो वॉइड बोल के छोड़ देता है। वॉइड एब इनिशियो तो हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इतना डीप क्लासिफिकेशन करते हैं, बट आपको हर बार एग्जाम में भी वॉइड एब इनिशियो इतना स्पेसिफिक वर्ड शायद नहीं मिलेगा। ओके, तो डोंट बी वेरी स्पेसिफिक। वॉइड है मतलब नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब केस नहीं कर सकते, आप यही समझ के चलो। ओके,
तो यहाँ पर एग्रीमेंट इज यूज्ड, द वर्ड एग्रीमेंट इज यूज्ड क्योंकि लॉ ही बोलता है आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर इसीलिए हमने एग्रीमेंट वर्ड यूज किया बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि वर्ड कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट क्यों यूज किया गया है। ये देखो, यहाँ पर मैं कॉन्ट्रैक्ट वर्ड यूज क्यों करती हूँ, क्योंकि पहले तो वो वैलिड था ना, फिर वॉइड हो गया। लेकिन जब भी मुझे वॉइड एब इनिशियो डिस्कस करना है तो मैं हमेशा एग्रीमेंट वर्ड ही यूज करूंगी बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो आप बोल सकते हो ये सब वॉइड एब इनिशियो है, हाँ है, मैं डिनाई नहीं करती हूँ, बट लॉ इतना डिटेल में, इतना स्पेसिफिक हमेशा नहीं लिखता है। तो ये सब वॉइड एब इनिशियो ही है। चलो, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग, जितने भी वर्ड्स, जितने भी टर्म्स आप यूज कर रहे हो ना, वन वर्ड वन मीनिंग, कोई डबल मीनिंग वर्ड्स नहीं चाहिए, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, टर्म्स तो यूज करने ही नहीं है आपको। वन वर्ड वन मीनिंग, पढ़ के ना क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या बोलना चाहता है। अगर थोड़ी सी भी अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन आया, एम्बिग्विटी बोलते हैं उसे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा क्योंकि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जैसे एक्स इज अ डीलर इन डिफरेंट काइंड ऑफ ऑयल, ठीक है, ये मिस्टर एक्स हैं, ये बहुत तरीके के ऑयल्स में डील करते हैं, कोकोनट ऑयल, सेसमी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, बहुत सारे ऑयल्स में डील करते हैं। ही एग्रीज टू सेल 100 liters of oil to मिस्टर वाई। अब बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? बताओ चलो, क्या ये वैलिड है? और मैं आपको आंसर नहीं दिखाऊंगी, नहीं तो आंसर पढ़ लोगे आप। X is a dealer in various kinds of oil. वो Y को बोलता है आई विल सेल 100 liters ऑफ ऑयल टू यू। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? चलो सोच के बताओ मुझे। और अगर वैलिड नहीं है तो मुझे रीजन भी चाहिए, हाँ, वैलिड क्यों नहीं है। आप व्हाट्सएप पे भी आपका आंसर भेज सकते हो। Exactly. We don't know the kind of oil. The kind of oil is not specified. Correct, correct, correct. यहाँ पे भी करेक्ट आंसर्स आए हैं। हमको पता नहीं ना कौन से काइंड ऑफ ऑयल की बात हो रही है, इसीलिए अनसर्टेनिटी है, तो एग्रीमेंट वॉइड है। वेरी गुड। अच्छा सुनो, मैं आपको ना थोड़ा सा एक वेरिएशन देती हूँ, ठीक है। व्हाट इफ मिस्टर एक्स इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल ओनली? अभी बताओ, वो सिर्फ कोकोनट ऑयल में डील करते हैं और वो बोल रहे हैं कि आई विल सेल 100 liters ऑफ ऑयल टू यू। अब बताओ क्या ये वैलिड है? ही इज अ डीलर इन कोकोनट ऑयल ओनली और वो लिखते हैं आई विल सेल 100, अब वैलिड है क्या? करेक्ट, बिकॉज अभी तो अंडरस्टूड है ना, अभी बताने की क्या जरूरत है, अभी तो अंडरस्टूड है। मैं एक ही ऑयल में डील करती हूँ तो मैं कोकोनट ऑयल की ही बात कर रही हूँ ना, तो ये केस में एग्रीमेंट वैलिड होगा। ठीक है, तो द टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए द टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। सर्टेन का मतलब क्या होता है? क्लियर। अनएम्बिगुअस, अनएम्बिगुअस का मीनिंग होता है क्लियर। तो फिर एम्बिगुअस का मीनिंग क्या होता है? एम्बिगुअस मतलब अनक्लियर या फिर कंफ्यूजिंग। अनक्लियर या फिर कंफ्यूजिंग। आपके जो टर्म्स है ना कॉन्ट्रैक्ट में, वो क्लियर होने चाहिए, सर्टेन होने चाहिए, अनएम्बिगुअस होने चाहिए। अब
सिंपल वर्ड्स में प्लीज मत लिखना एग्जाम में, अनएम्बिगुअस जैसा बहुत ही अच्छा वर्ड आपको एग्जाम में यूज करना है, तो इसको लर्न कर लो स्पेलिंग के साथ। एज पर सेक्शन 29, मैंने आपको बताया सेक्शन नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 29, agreements the meaning of which is not certain or it is not capable of being certain, then they are void. अगर आप कोई ऐसी एग्रीमेंट कर लेते हो जिसके टर्म्स, जिसके वर्ड सर्टेन नहीं है, या फिर आप सर्टेनिटी से बता भी नहीं पा रहे हो, इट्स नॉट केपेबल ऑफ बीइंग सर्टेन, मतलब आप बता भी नहीं पा रहे कि इसका क्या मीनिंग होगा, कंफ्यूजन है, तो वो वॉइड है। जैसे ये ऑयल वाला एग्जाम्पल। However, if we can make out from the facts and circumstances, उसको अंडरलाइन कर लो। If the meaning could be made certain from the facts or circumstances of the case, then it is a valid contract. जैसे if he is a dealer in coconut oil only, वो सिर्फ कोकोनट ऑयल में ही डील करता है, तो फिर तो अंडरस्टूड है ना वो किसकी बात कर रहा है, फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, तो वैलिड है। आई होप आप मेरे साथ साथ अंडरलाइन कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो। वो जो वॉइड वाला चार्ट लिखा है ना आपने, उसका रेफरेंस आपको टेक्स्ट बुक में देना है, हाँ? आपको लिखना है आपके नोटबुक के कौन से पेज पे है वो चार्ट। अगर नोटबुक के पेज 1 पे है या 2 पे है, चलो पेज 2 पे अगर आपका है, तो आप लिखो यहाँ पर रिफर नोटबुक पेज नंबर, और नोटबुक का पेज नंबर लिखो, ताकि आपको मालूम तो पड़े कि ये पढ़ते समय आपको नोटबुक का पेज रिफर करना है। कुछ लिखवाया है मैंने वहां पर। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पॉसिबिलिटी मतलब अरे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, इट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड फिजिकली, लीगली, इट शुड बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। जैसे एक्स ऑफर्स टू सेल अ हाउस टू वाई फॉर 2 crore रुपीज। ये तो वैलिड है क्योंकि ये फिजिकली आप दे सकते हो ना, इट इज पॉसिबल टू परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट। द टर्म्स आर सच दैट दे आर केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म। परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है? आपने जो प्रोमिसेस किए ना अभी उनको पूरा करो, दैट इज नोन एज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस की बात, परफॉर्मेंस लिखो यहाँ पे, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? परफॉर्मेंस वर्ड दिया है ना हमने यहाँ पे, परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है? टू फुलफिल द promises made in the contract. To fulfill the promises made in the contract. तो घर का प्रॉमिस तो फुलफिल कर ही सकते हैं ना, वो तो पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं आपको बोलती हूँ मुझे 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं आपके लिए एक स्टार लेके आऊंगी स्काई से खुद जाकर, मैम ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी एग्रीमेंट्स करना वॉइड है। मैम कौन करता है ये? कोई लोग करते भी हैं क्या? फूलिश पीपल। वो मतलब कभी कभी बोलते हैं ना, अरे मेरी मत मारी गई थी, पता नहीं मैंने क्यों ऐसे किया। क्यों बोलते हैं ऐसे कि पता नहीं मैंने क्यों ये कर दिया? ऐसे मैम, ऐसे बेवकूफी के कॉन्ट्रैक्ट्स करने वाले करते हैं। आप दे दो मुझे, मैं एक स्टार ले आऊंगी आपके लिए स्काई से, एक स्टार आपके नाम पे कर दूंगी। होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स। आई विल शो यू ट्रेजर बाय मैजिक, और फिर वो आप घर ले जाना। ये पॉसिबल ही नहीं है परफॉर्म करना। मतलब बेवकूफ लोग हैं जो ये कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। मैं आपको बोलती हूँ आप मुझे ना 10,000 रुपए दो, मैं आपको डायनासोर दिखाऊंगी, किसी को नहीं दिखाया आज तक। मैं आपको दिखाऊंगी, यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी एन एक्चुअल डायनासोर। दे दो 10,000। आप भी बेवकूफ, दे दिए मुझे 10,000, मैं तो लेके भाग गई। मैम ये फ्रॉड है क्या? पता नहीं। फ्रॉड में इंटेंशन टू चीट होना चाहिए।
तो वो अगर क्वेश्चन वैसा दिखता है कि इंटेंशन टू चीट है, तो आप बोल सकते हो कि ये फ्रॉड है क्या। लेकिन मुझे लगता है कि फ्रॉड ना बोल के अगर आप वॉइड का केस करोगे, इट विल गिव यू अ बेटर रेमेडी। ठीक है, बेटर रेमेडी मिलती है अगर आप उसको कैंसल ही करवा दो। अच्छा, कल मुझे किसी स्टूडेंट ने एक डाउट पूछा था कि मैम, हमको इंटेंशन कैसे समझ में आएगी ना, हम किसी के दिमाग में तो घुस नहीं सकते, जैसे फ्रॉड है और मिसरिप्रेजेंटेशन है। ये मुझे ये डिस्कस करना था आज डाउट, कि फ्रॉड में मैंने क्या डिस्कस किया था, देयर इज इंटेंशन टू चीट, लेकिन मिसरिप्रेजेंटेशन जो है उसमें देयर इज नो इंटेंशन टू चीट। अब बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है इस पे, मैम मेरा इंटेंशन था पर मैं तो जज के सामने झूठ बोल रही हूँ। नहीं सर, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था, मैंने तो इनोसेंटली बोल दिया। तो बोलने को तो पार्टीज झूठ ही बोलेंगी ना, वो थोड़ी ना जेल जाना चाहती है या सच बोलना चाहती है, पार्टीज तो झूठ ही बोलेंगी। इसीलिए दोनों साइड के लॉयर्स होते हैं ना, वरना तो एक ही साइड का लॉयर होता। तो अगर पार्टी झूठ बोल रही है कि मैम मेरा तो ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था, तो जो सामने वाली पार्टी का लॉयर है ना, वो ये प्रूव करने की कोशिश करेगा कि कैसे तुम्हारा इंटेंशन था, और वो कैसे प्रूव करेगा, बहुत सारे फैक्ट्स या फिर आपके एक्शन से, कि आपने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया। ये काम तो वही पर्सन करता है जिसका कोई चीटिंग का इंटेंशन होगा। तो हमारे एक्शन से हमारे इंटेंशंस का पता चलता है। तो ये तो मैं भी हमेशा मानती हूँ। ये लॉ क्या है? कॉमन ये तो कॉमन सेंस है कि योर एक्शंस शो योर इंटेंशन। हम बोलते हैं ना, आपने ऐसा क्यों किया? नहीं, 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 मेरा ऐसा कुछ मतलब नहीं था। नहीं, नहीं, आपने ये काम किया मतलब आपके दिमाग में तो था ना, आपकी इंटेंशन तो थी ना, तो कैसे हम लोगों को पकड़ लेते हैं ना, तूने ऐसा क्यों बोला? नहीं, नहीं, मेरा ये बोलने का मतलब नहीं था। नहीं, नहीं, तूने ये बोला मतलब तूने सोचा तो होगा ना। ऐसे बिना सोचे कोई बोलता है क्या? तो मतलब इंटेंशन तो थी ना, कैसे हम आर्ग्यू करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो एक्शंस शो इंटेंशन, तो सामने वाली पार्टी का लॉयर दिखाएगा कि कैसे इसकी इंटेंशन थी। ओके। तो चीटिंग की इंटेंशन थी, इसीलिए आपने नकली डॉक्यूमेंट्स बनाए। जैसे सोच लो ना कि किसी ने नकली पासपोर्ट बना लिया, ठीक है? और वो बॉर्डर क्रॉस कर रहा है। तो आप बोलोगे कि भई तुमने नकली बनाया क्योंकि तुम्हारा इंटेंशन था। आप ये नहीं बोल सकते, नहीं, नहीं, मैंने बनवाया तो है कि नहीं, लेकिन मेरा यूज़ करने का कोई इंटेंशन नहीं था। नहीं, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारी इंटेंशन दिखाते हैं। तो उस तरीके से मुझे प्रूव करना पड़ेगा। मैम फिर भी हम प्रूव ही नहीं कर पाए। तो स्टूडेंट्स, अगर पार्टी झूठ बोले जा रही है, लेकिन सामने वाला लॉयर उसे प्रूव ही नहीं कर पा रहा, तो फिर जजमेंट जो झूठ बोल रहा है उसी के फेवर में आएगी। क्योंकि लॉ बोलता है कि तुम जो प्रूव कर पा रहे हो, मैं उसके बेसिस पे जजमेंट दूँगा। तो अगर आप नहीं प्रूव कर पा रहे कि ये झूठ बोल रहा है या सारे फैक्ट्स वही गलत बंदे के फेवर में, तो गलत ही नतीजा आएगा। ओके? तो यस, हम तो वैसे पार्टीज़ को बोलते हैं अंडर एन ओथ, हम जो बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन हमारा किसी पे कोई कंट्रोल नहीं है। अगर पार्टी झूठ बोल रही है, तो गलत ही नतीजा आएगा। ठीक है? तो ये याद रखना, एक्शंस शो इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। तो अगर आपकी इंटेंशन दिख रही है चीटिंग है, तो फ्रॉड है, वरना मिसरिप्रेजेंटेशंस मान सकते हो। अच्छा, तो भाई प्लीज ऐसे बेवकूफी के कॉन्ट्रैक्ट्स मत करना। दे आर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, एग्रीमेंट इज वॉइड। लीगल फॉर्मेलिटीज, वैसे तो लॉ बहुत ही लिबरल है, बोलते हैं भाई कैसे भी बनाओ कॉन्ट्रैक्ट, ओरल, राइटिंग, पार्टली ओरल, पार्टली राइटिंग, कैसे भी बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वैलिड। कैसे? प्रूफ ले आओ ना, विटनेस ले आओ, तो वो भी वैलिड माना जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट। ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स आर आल्सो वैलिड। ठीक है? प्रूफ चाहिए, बस विटनेस चाहिए उसमें। अच्छा, तो वैसे तो लॉ बहुत लिबरल है, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस है जहां पर लॉ अड़ जाता है। नहीं, 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 ओरल नहीं चलेगा, राइटिंग में ही चाहिए मुझे। राइटिंग क्या, मुझे तो रजिस्ट्रेशन भी चाहिए।
जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट, अगर मुझे ये रूम किसी को बेचना है या मुझे ये जो ऑफिस है ये किसी को सेल करना है, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एग्रीमेंट राइटिंग में ही होनी चाहिए और वो रजिस्टर्ड भी होनी चाहिए, स्टैम्प्ड होनी चाहिए। तो कभी-कभार लॉ इंसिस्ट करता है कि नहीं, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, हम जो बोल रहे हैं वो करो। ठीक है, अगर ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो पूरी करेंगे, नहीं है तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कभी-कभार लॉ इंसिस्ट कर देता है कि नहीं, राइटिंग में होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करवाओ, स्टैंपिंग करवाओ, अटेस्टेशन। आप जब इंस्टीट्यूट में मार्कशीट सबमिट करते हो तो साइन करते हो कि नहीं? दैट इज़ अटेस्टेशन। या फिर आप गेज़ेटेड ऑफिसर से ट्रू कॉपी का साइन करवा लेते हो, दैट इज़ अटेस्टेशन। तो लॉ बोलता है कभी-कभार कि नहीं, मुझे तो राइटिंग में ही चाहिए, रजिस्टर होना ही चाहिए, स्टैंपिंग चाहिए, अटेस्टेशन चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी होगी तो पूरी करेंगे, वरना अपनी मर्ज़ी से कॉन्ट्रैक्ट बनाएँगे। वैसे तो लॉ लिबरल है, बोलता है अ कॉन्ट्रैक्ट में बी ओरल और इन राइटिंग बट इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इट सेज दैट फॉर एन एग्रीमेंट टू बी वैलिड इट मस्ट बी इन राइटिंग और रजिस्टर्ड, लेकिन ये सिर्फ सर्टेन स्पेशल केसेस में है। एक मैंने आपको बता दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो केस है, वो तो मुझे राइटिंग में ही चाहिए, रजिस्टर्ड चाहिए। दूसरा है गिफ्ट डीड, ठीक है? अगर मुझे आपको गिफ्ट देना है और मुझे उसका प्रूफ रखना है, ताकि किसी के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसे 2 भाई हैं, तो फादर बोलते हैं भई तू पैसे रख ले, तू प्रॉपर्टी रख ले, तो बोलते हैं लिख लो ये। गिफ्ट कर रहे हो तो लिखो, वरना आगे वो लड़ाई करेंगे कि नहीं डैड तो मुझे देके गए थे, ना मुझे देके गए थे। तो गिफ्ट करना है अगर आपको, गिफ्ट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड, ताकि डिस्प्यूट्स ना हो, या हो तो फिर अपने पास प्रूफ हो। तो गिफ्ट अगर आपको देना है तो राइटिंग और रजिस्टर में चाहिए, लेकिन मैरिज वाला ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, शादी में गए आपने, दूल्हा दुल्हन खड़े हैं स्टेज पे और आपने उनको कवर दे दिया, बोला चल अभी तू साइन कर इधर, वो बात नहीं कर रही, वो गिफ्ट की बात नहीं कर रही। हाँ, लेकिन कुछ आप प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो, ज्वेलरी गिफ्ट कर रहे हो, या फिर समथिंग दैट यू नो कि इसका प्रूफ रखेंगे तो बेटर है, आगे डिस्प्यूट्स नहीं होंगे, तो प्रॉपर गिफ्ट, जैसे शेयर्स अगर आप गिफ्ट कर रहे हो, तो शेयर की गिफ्टिंग कर रहे हो तो आपको एग्रीमेंट राइटिंग में ही करना पड़ता है, फॉर्म वगैरह भरने ही पड़ते हैं। प्रॉपर्टी गिफ्ट कर रहे हो, ज्वेलरी गिफ्ट कर रहे हो, तो इट इज ऑलवेज प्रेफर्ड टू बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। तो ठीक है, ऐसी कोई लीगल फॉर्मेलिटी होंगे तो करेंगे, नहीं है तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। एक बात ध्यान से सुनो, ऑल दीज 11 एलिमेंट्स हैव टू बी प्रेजेंट टू मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक भी मिसिंग होगा ना तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एक भी मिसिंग होगा तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। All these elements must be present to make a valid contract. ठीक है, चलो, यही थे हमारे सारे एलिमेंट्स। यस, यस, करेक्ट। इंश्योरेंस के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो तो वैसे गिफ्ट डीड नहीं होगा, या फिर वो यस, बट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स वो भी राइटिंग में होने चाहिए। बैंकिंग के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो भी आपको फॉर्म फिल करके सब राइटिंग में ही करवाना पड़ता है। हर चीज कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब आप ये पढ़ रहे हो और हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं ना, तो आपको रियलाइज होगा हर चीज कॉन्ट्रैक्ट है। आपको पता है, आपके घर पे जो दूध वाला दूध रख के जाता है और महीने के एंड में पैसे लेता है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट है। सो मिल्कमैन जो मिल्क लेके आता है, जो फ्लावर लेके आता है पूजा के लिए, मंथ के एंड में आपसे पैसे लेता है, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपके घर में मेड आती है काम करने के लिए, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। आपके घर पे न्यूज़पेपर आता है, दैट इज़ ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। आप सब्ज़ी खरीदने जाते हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट है। आपका कॉलेज के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इन आईसीएआई के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। हर चीज़ कॉन्ट्रैक्ट है। So that is the beauty of this subject. It is so relatable. And yes, correctly said, इंश्योरेंस के भी कॉन्ट्रैक्ट्स वो राइटिंग में होने चाहिए, करेक्ट। बाकी तो देखो ना, जैसे मिल्कमैन के साथ, फ्लावर वाले के साथ, न्यूज़पेपर सब ओरल है, वो चलेगा। लेकिन नहीं, बैंकिंग, इंश्योरेंस है, आप भी जब मेरे पास एडमिशन लेते हो तो आप बोलते हो ना मैम रिसीट, तो मेरे ईमेल में ही इनवॉइस चला जाता है। दैट्स अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट कि भई आपने परचेज़ किया है, हमारी ड्यूटी है कि अब हम एग्ज़ीक्यूट करें।
चलो तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं पूरा जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, एंड देन वी विल स्टॉप फॉर द डे। अगले सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले we need two persons to form a valid contract. So minimum two parties. There must be proper offer and acceptance. Offer is the starting point of contract. Offer, acceptance must be properly communicated. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। बिजनेस कमर्शियल में इंटेंशन है, सोशल डोमेस्टिक में ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। इधर लिखा हुआ है मैंने, एक्चुअली 2-3 शीट्स हो गई मेरी, तो अभी मुझे एक में ही कंपाइल करना है उसको। यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, Balfour versus Balfour. Then there must be free consent. Section 13 defines consent and section 14 defines free consent. Consent is not free when it is caused by coercion, section 15, undue influence, section 16, fraud, 17, misrepresentation, 18, and mistake, 20. Next essential element is that parties must be capable of entering into a valid contract. So only a major person, person of sound mind, and person who is not disqualified from contracting can enter into a valid contract. Section 11. Lawful consideration होना चाहिए. Consideration means something in return. That consideration must be lawful. दोनों को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए और वो lawful होना चाहिए. Lawful object होना चाहिए. The purpose for which we are entering into contract वो lawful होना चाहिए. Agreement must not expressly be declared void. Void का मतलब क्या होता है? Void means it is not enforceable by law. Void दो तरीके के होते हैं, एक है void ab initio और दूसरा है just void. Void ab initio means void right from the beginning, जैसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट, स्मगलिंग या किलिंग का कॉन्ट्रैक्ट. जस्ट void मतलब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तब तो वो वैलिड था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा सर्कमस्टांस हो गया कि अब वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं कर पा रहे, तो वो void हो जाएगा. A promised to marry B, contract is valid, but before marriage, A died. Marriage cannot take place, agreement is void. X offered to sell onions to Y, Y ने बोला हाँ भेज देना. X इंडिया में है, Y बांग्लादेश में है. इनके कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया, लेकिन एक्सपोर्ट करने से पहले गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया. अब ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स नहीं किया जा सकता, इट बिकम्स वॉइड. लेकिन अगर कुछ एडवांस दिया है तो वो रीस्टोर हो जाएगा. सेक्शन 65, रीस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट. कुछ ऐसे एग्रीमेंट्स है जो एक्सप्रेसली वॉइड है. देखो आपका एग्रीमेंट वहां पर नहीं आना चाहिए वरना वॉइड हो जाएगा. ये भी हम यूनिट 3 में और डिटेल में पढ़ेंगे. मीनिंग सर्टन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए. एक और वर्ड है जो आगे आएगा, मैं आपको अभी बता देती हूं, वेग. ठीक है, वेग. ओके, उसका भी मीनिंग यही होता है, एम्बिगुअस जैसा ही होता है. तो ये जो वेग है ना, ये सिमिलर वर्ड है. एम्बिगुअस, वेग, ये इनका सबका मीनिंग होता है अनक्लियर, कंफ्यूजिंग. वो नहीं होना चाहिए. आपके जो भी टर्म्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए. वेग, वेग, एम्बिगुअस नहीं होने चाहिए. Your contract must be capable, it must be possible of being performed. अगर इम्पॉसिबल है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है. सेक्शन 56, ये हम आगे पढ़ेंगे यूनिट 4 में. पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इनिशियल एंड सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, सेक्शन 56. एंड अगर कोई लीगल फॉर्मेलिटी है तो पूरी करो, नहीं है
तो अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करो। ओरल और रिटन दोनों वैलिड है। हाँ, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर हम इंसिस्ट करते कि नहीं भाई, हमको तो राइटिंग में ही चाहिए, रजिस्टर्ड भी चाहिए। इमूवेबल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर गिफ्ट डीड, ये तो राइटिंग में ही होने चाहिए। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, यस, ये भी राइटिंग में ही चाहिए हमें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारे सारे एसेंशियल एलिमेंट्स अच्छे से डिस्कस करके हो गए। नेक्स्ट सेशन जो है हमारा, उसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। एक डाउट है डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स के ऊपर। ओके, डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, देन हाउ आर दे कॉन्ट्रैक्ट्स? नहीं, बोलने के लिए हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं, रहते वो एग्रीमेंट ही हैं। दे आर नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, इसीलिए हम उन्हें डोमेस्टिक एग्रीमेंट ही बोलते हैं। एग्रीमेंट वर्ड यूज कर लिया मतलब दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। ठीक है, तो हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे, हम उन्हें एग्रीमेंट ही बोलेंगे। सोशल या डोमेस्टिक एग्रीमेंट, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऑलराइट गाइस, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और भी अगर आपके पास कोई डाउट है, आप रिवाइज कर रहे हो, डाउट्स आ गए, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर। आई विल बी वेरी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स। ओके, चलो, अगले सेशन में हम मिलेंगे एंड वी विल डिस्कस क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Students, these lectures can be purchased from my website capreetyagarwal.com। तो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, एंड यू कैन visit and purchase and enroll for this batch by visiting my website capreetyagarwal.com. Chalo, I'll see you next time and we will discuss classification of contract. Bye bye guys.